Hello learners, I Diksha Chaudhary welcome you all to my YouTube channel English Winglish. Do you find introducing yourself confusing or scary, or you do not know how to start your introduction, or you get stuck while introducing yourself? If you want answers to these questions, then please watch the video completely. So let's get started. How do you introduce yourself? So, when you give your formal introduction, always remember to greet the person who is taking your interview. You may use good morning, or you may use good afternoon, or you may use good evening. This will depend on the time of the day in which you are giving your interview. इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम जो भी टाइम चल रहा है उस हिसाब से आप उन्हें विश करेंगे. And always remember, do not use hey or hi words. These words are informal. Do not use them in a formal introduction. Okay? Then, the second thing that you have to do in the formal introduction is tell your name. How do you tell your name? There are two ways to tell your name. The first one is you may simply say, I am Diksha Chaudhary, or whatever your name is. Then the second way is, my name is Diksha Chaudhary. You may write your name or tell your name. I am giving my example now. And the blunder which people do is, they say myself Diksha Chaudhary, or they write their name, or while speaking they speak their name with the word myself. Using your name with myself is a grammatical error. Do not use your name with this word. This is a blunder. Next thing that you must include in your formal introduction is the place you belong to. यानी कि हम इसमें अपना geographical location बताते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं. तो अगर हमें बहुत briefly बताना है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं तो हम ये sentence use करेंगे. So let's see the sentence. I belong to dash district of dash state. तो ये तो मैंने डैश के साथ बताया. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, आई बिलोंग टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो आप भी ऐसे कर सकते हैं. आप अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट बता सकते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस is specific. If you want to specify the geographical location, like you live in this place and now you are living in this place, so in that case you may use this sentence. The sentence goes like, I am originally from dash but now I am based at dash. Here you may specify the state you originally belong to and now you may be living in some other state. हमारी पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से हम अपना स्टेट बदल लेते हैं, तो उस केस में हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि हम ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले हैं और अभी कहाँ रह रहे हैं, तो वो यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. आई ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम यूपी बट नाउ बेस्ड एट कर्नाटका. तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं. हो सकता है आप ओरिजिनली यानी आप कहीं और बॉर्न हुए होंगे पर आप अभी कहीं और रह रहे होंगे, तो आप अपना सेंटेंस में या जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उस जगह पे आप अपना स्टेट लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट इंक्लूड इन द फॉर्मल इंट्रोडक्शन इज योर फैमिली बैकग्राउंड. सो स्टार्ट विद योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम एंड देन प्रोसीड टू द नंबर ऑफ सिबलिंग्स you have. So now let's see the sentence. The sentence says, my father. Here you have to write your father's name. My father so and so is a, you have to write the occupation. यानी कि वो क्या काम करते हैं. वो अगर एक एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में वो लिखिए. अगर वो बिजनेसमैन है तो आप वहाँ बिजनेसमैन लिखेंगे. अगर वो कुछ और अपना गवर्नमेंट जॉब में है तो आप वो लिखेंगे. अगर वो आर्म फोर्सेस में है तो आप आर्म फोर्सेस लिखेंगे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी. ठीक है, फिर आप अपनी मम्मी के बारे में बताएंगे. माई मदर, यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे. इज़ अ
अगर वो जॉब करती है तो आप लिखिए कि वर्किंग वुमेन है और अपना स्पेसिफाई भी करिए कि वो क्या काम करती है। लेकिन अगर वो एक हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ मत लिखिए, उससे अच्छा एक वर्ड है होम मेकर। वैसे भी हमें पता है कि माएँ जो होती हैं वो घर बनाती हैं, घर को संवारती हैं, तो इसीलिए हाउसवाइफ से बहुत अच्छा वर्ड है होम मेकर। ओके, तो अवॉइड यूजिंग हाउसवाइफ, इंस्टेड यूज द वर्ड होम मेकर। अगर आपको स्पेलिंग दिख रही होगी तो HOMEMAKER ये स्पेलिंग है। ओके, फिर हम अपने भाई बहनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपका एक भाई या एक बहन है तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव वन ब्रदर। अगर आपकी एक सिस्टर है तो आप ये भी लिख सकते हैं आई हैव वन सिस्टर। लेकिन अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा हैं, यू आर मोर देन 3, then what do you do? Then you can use simply this sentence, I am one of the dash siblings. So as I already said, if you are more than 3, let us take an example, you are 4 in number, then you may say I am one of the 4 siblings. इसका मतलब ये है कि आप 4 भाई बहनों में से एक हैं। ठीक है, अब इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कितनी बहन है, कितने भाई हैं, क्योंकि इंटरव्यू को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये तो बस हमारे अगर एक है तो हम लिख देते हैं, वो इजी होता है इस वजह से। अदरवाइज आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आई एम वन ऑफ द 2 सिबलिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, plays a major role in your interview. So if you are pursuing something, इसका मतलब है अगर आप अभी कोई कोर्स कर रहे हैं, करेंटली जब आप इंटरव्यू देने गए हैं तब आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उस कोर्स में, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम करेंटली परस्यूइंग द डैश कोर्स फ्रॉम डैश। अब इस डैश में भरना क्या है तो आप देखिए बता रही हूँ, आई एम करेंटली परस्यूइंग MSc फ्रॉम DU। यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखेंगे कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया है, आई एम करेंटली परस्यूइंग MSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप अपने हिसाब से बोलिएगा, आप पूरा बोलिएगा। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में कैसे बताएंगे, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है और किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन डैश फ्रॉम डैश। अब इस डैश में क्या भरना है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन, यहाँ आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर आपने साइंस में किया है या आर्ट्स में किया है या कोई और सब्जेक्ट में किया है तो आप वो वहाँ लिखेंगे। जैसे अगर आपने साइंस में किया है, साइंस इन साइंस फ्रॉम कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर मैं जैसे इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख रही हूँ तो आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है और आपका जो भी स्ट्रीम था, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया था वो लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों का क्या होता है, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या बोले, हमारा ग्रेजुएशन तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, कोई पूछता है, और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आया रहता तो भी उनको हम ग्रेजुएट नहीं मानते हैं, जब तक उनका एटलीस्ट प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो उस केस में वो क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे देखते हैं। वो सेंटेंस यूज़ करेंगे आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, दिस मीन्स दे आर वेरी नियर टू गेटिंग देयर डिग्री बट दे हैवंट गॉट देयर डिग्री येट, तो वो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आप अपने स्कूलिंग के बारे में बताएंगे कि आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, तो वो कैसे बताया जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डैश बोर्ड। यहाँ पर आप CBSE लिख सकते हैं, ICSE लिख सकते हैं, स्टेट बोर्ड लिख सकते हैं, जो भी बोर्ड है आपका। तो जैसे मैं CBSE ले रही हूँ एग्जाम्पल में, आई एम स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड, तो ऐसे ही आप अपना बोर्ड लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्लियर होंगे। अगर आप कुछ भी करेंटली परस्यू कर रहे हैं तो आप ये बोलेंगे,
अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप ये बोलेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप ये बोलेंगे, आप सेकेंड या थर्ड ईयर में होंगे तो भी आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। और फाइनली आपको अपना स्कूल, जिससे जो भी बोर्ड था आपका वो बताना है। स्कूल का नाम बताना ज़रूरी नहीं है, पर आप अपना बोर्ड बताएंगे तो वो भी काफ़ी है। So the last thing that you must include in your formal introduction is your hobby. Make sure the hobbies that you present are real ones. Do not just fake it. Do not just write I like reading books if you do not like it, because the interviewer may ask you some questions related to your hobbies. And if you don't like reading books and he asked you some questions about books and you are not able to answer, so that becomes embarrassing. So why to write such things, right? So I will be giving you some list of hobbies. And one more thing, make sure that in your hobbies list you mention some outdoor activities as well as some indoor activities, because this makes sure that you are a social person. This shows that you are a active person who can enjoy even with friends or even when the person is alone. So let's see some hobbies. Hanging out with friends, swimming, playing games, traveling. These are done out of the house, we go out, we usually do these with our friends. Then we have some indoor activities. In this we all know we watch YouTube videos. This is the favorite leisure for most of us. Then playing guitar. In lockdown also I've seen many of my friends started learning guitar. And then singing. This is also a hobby which people usually do alone. Okay, so you may think of your own hobby, take time and then list down your hobbies, and be ready to answer the questions related to your hobbies. As of now, I have covered all the points which are very important in a formal introduction. Here I have given you an example which you can refer and make a similar introduction of yours. So once I'll read it for you. Good morning, I am Shivani Kapoor and I belong to Jaisalmer district of Rajasthan. My father is a businessman and my mother is a homemaker. I am currently pursuing MSc course and I am a science graduate, and I have done my schooling in CBSE board. My hobbies are watching movies, playing guitar, traveling. So you can make a similar introduction for yourself. So thank you, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel English Winglish. Thank you.